Okay, students, in today's class, we will discuss something about the classification of sentences. And this will definitely give you some information about the clauses. And the one who has some information about the clauses will be able to understand this lecture very easily. So please, next slide. Before we move towards the complete, the comprehensive lecture, I would like to guide you people about the classes. We are not going to talk about the types. We are discussing the classes. So the sentences have been classified into 4 classes. You have to keep one thing in your mind कि sentences को 4 classes के अंदर divide किया गया है और वो 4 classes कौन सी हैं? I would like to discuss before you. Simple sentence, compound sentence, complex sentence, compound and complex sentence. These are the types. 4 types के अंदर या 4 classes के अंदर sentences को classify किया गया है. Simple, compound, complex, compound and complex. Next. आइए चलते हैं अपनी पहली जो क्लास है, that is simple sentence. It is the sentence which has one independent clause and it makes a simple and a negative statement ending with a full stop. देखिए बेटे, जब आप इन क्लासेस को डिस्कस करेंगे तो थ्रू आउट द लेक्चर आई विल बी टॉकिंग अबाउट डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉजेस एंड कोऑर्डिनेटिंग एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. तो साइड बाय साइड में उसकी भी नॉलेज आपको देता रहूंगा. लेकिन इस वक्त जो अब हमने पहली क्लास की बात की, दैट इज अ सिंपल सेंटेंस, और इसके बारे में मैंने कहा इट हैज गॉट वन इंडिपेंडेंट क्लॉज. व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज? A combination of subject and predicate and forms a sentence by itself. ये एक ऐसी कॉम्बिनेशन है इंडिपेंडेंट क्लॉज जिसमें हमारे पास सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है और वो खुद से एक सेंटेंस बनाने की सलाहियत रखता है. अब इसमें आपने ये कहा कि सिंपल सेंटेंस क्या है, which has one independent clause and it makes a simple and a negative statement ends with a full stop. For example, आप देखिए, they did not prepare the topic today. Subject plus predicate एक independent clause और इस वक्त ये negative statement है जो कि part होता है simple sentence का ending with a full stop. Next, I have been teaching them since morning. ये simple sentence, subject plus predicate आपके पास है and it's making a simple sentence and it is just containing one independent clause. Why? Because it is giving complete and clear sense by itself. Or last example है, he is enjoying the party. Subject, rest of the sentence is predicate and thus it is having one independent clause. तो आप देख सकते हैं कि ये जितनी भी examples हैं इसके अंदर हमारे पास एक ही independent clause है. Subject plus predicate, subject plus predicate, subject plus predicate. या तो आपके पास negative statement होगी या तो आपके पास positive statement होगी, लेकिन clause एक ही होगा और अपने अंदर ही वो complete होगा, किसी और class पे depend नहीं करेगा. This is why it is called simple sentence और ये एक independent clause पर इन्हिसार करता है या एक independent clause होता है. Next. Now we are going towards the compound sentence. What is that? It is the sentence which contains 2 or more than 2 independent clauses connected by coordinating conjunctions but and or. आपने fan voice पढ़े होंगे, वो भी इसके अंदर include हो, जैसे for है और है, like that. ठीक है, गौर कीजिएगा बेटे. अब इसके अंदर जो बात हमने की वो ये की कि अगर आप जब कंपाउंड सेंटेंस की बात करते हैं तो कंपाउंड सेंटेंस के अंदर आपके पास 2 या 2 से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगे. अगर 2 होंगे तो भी कनेक्ट होंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की मदद से. 2 से ज्यादा होंगे तो तब भी लास्ट 2 क्लॉजेस जो है वो भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की मदद से कनेक्ट होंगे. अब बात ये पैदा होती है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं. सुन लीजिए, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस अगर आप क्लॉजेस की स्टडी में बात करें तो आप कहते हैं दीस कंजंक्शंस आर दोस कंजंक्शंस व्हिच आर यूज्ड टू कनेक्ट द 2 क्लॉजेस ऑफ इक्वल रैंक. They can also connect word to word, phrase to phrase, sentence to sentence. और इस वक्त अगर आप बात करें तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहां पर कंपाउंड सेंटेंस हमारे पास वो होता है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं लेकिन वो कनेक्ट होते हैं आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस बट एंड और जितने भी फैन वॉइस हैं वो सारे के सारे यहां पर इंक्लूड किए जा सकते हैं. आइए एग्जांपल की तरफ चलते हैं. मैं कहता हूं they have taken the class, one independent clause, comma, they have managed the things, 2 independent clauses, and they have prepared for the tests. और यहां पर आप देख सकते हैं subject plus predicate, subject plus predicate, subject plus predicate और last 2 आइटम्स को जो हमने कनेक्ट किया वहां पर फैन वाई के एक एलिमेंट एंड को इस्तेमाल करते हुए हमने इनको आपस में कनेक्ट किया. अच्छा, एक और बात याद रखिएगा कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कभी भी किसी क्लॉज का हिस्सा
नहीं बनते, दे आर इम्पार्शियल। अगर आप इन क्लॉजेस की जगह चेंज भी कर दे, फॉर एग्जांपल आप ये कह रहे हैं दे प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट, दे हैव टेकन द क्लास एंड दे हैव मैनेज्ड द थिंग्स, तो एंड अपनी जगह पे कांस्टेंट ही रहेगा, किसी क्लॉज के साथ मूव नहीं करेगा। इसी को कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जो किसी क्लॉज का हिस्सा ना हो, सिर्फ हम पल्ला क्लॉजेस को, वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को या सेंटेंसेस को जोड़ने के काम आता है। लेकिन चूंकि बेटे यहां पर आप तो इंडिपेंडेंट क्लॉज कह रहे हैं जो कि कंप्लीट होता है, लिहाजा दो या दो से ज्यादा जितने भी क्लॉजों के लास्ट टू आइटम्स या दो को आपस में जोड़ने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। आइए एग्जांपल और देखिएगा। आई एम टीचिंग देम वन बट दे आर नॉट पेइंग अटेंशन। अब एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, आई एम टीचिंग देम, दे आर नॉट पेइंग अटेंशन, सेकंड इंडिपेंडेंट क्लॉज, और कनेक्ट किसने किया, बट फैन बॉय का एक एलिमेंट। अगर आप इन दोनों के मकामात को चेंज भी कर ले, इसको यहां लाएं, इसको यहां ले जाएं, स्टिल देयर वोंट बी एनी काइंड ऑफ इंपैक्ट ऑन, बट इट विल रिमेन कांस्टेंट। ये क्लॉजेस की मूवमेंट से अपनी जगह को तब्दील नहीं करता और ना ही किसी क्लॉज का हिस्सा बनता है। अगली बात बेटे एक और एग्जांपल देख लीजिएगा। वी आर एंजॉयिंग देयर वन कोमा, वी आर बाइंग थिंग्स टू इंडिपेंडेंट, एंड वी वर एजुकेटिंग अदर्स। अब गौर कीजिए, एक इंडिपेंडेंट क्लास, दो इंडिपेंडेंट क्लास, और लास्ट टू के दरमियान मैंने क्या लगा दिया, एंड लगा दिया। तो सारे के सारे डेफिनेशन के हिसाब से इंडिपेंडेंट क्लॉजेस ही हैं, या तो हो सकते हैं या दो से ज्यादा, कितनी भी तादाद हो, देयर इजंट एनी सॉर्ट ऑफ फिक्स्ड रूल। एक नोट लिखा है, इन द एग्जाम्स द अबव एग्जांपल्स कैन बी लाइक दिस टू। We can observe that we have subject and helping verb in the first class, but in the last two we don't have. There is no difference in the meaning. This sentence is having compound predicates. This sentence simply means when all the clauses have got the same subject, then it can be written once. मेरे कहने का मतलब क्या है? एग्जामिनर एग्जाम में आपको ट्रैप कैसे करेगा? अगर इस सेंटेंस को मैं अगर इस तरह लिख लेता, गौर कीजिए, इस वाले सेंटेंस को मैंने शेप चेंज करके आपको बताने की कोशिश की। देखिए यहां पर वी, यहां पर भी वी, यहां पर भी वी, तो इसका मतलब वी तो कांस्टेंट है, सबका सब्जेक्ट वी ही है। प्रेडिकेट मुख्तलिफ हो सकते हैं, अगर सब्जेक्ट एक हो और उसके काम बहुत ज्यादा हो, उन कामों को क्या कहते हैं, कंपाउंड प्रेडिकेट। अगर काम करने वाला एक हो और उसके काम ज्यादा हो तो प्रेडिकेट फिर मोनो प्रेडिकेट नहीं रहता, वो कंपाउंड प्रेडिकेट रहता है। अगर आपको याद हो, जब मैं आपको द कंपोनेंट्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ा रहा था, अब गौर कीजिएगा बेटा, वी वर एंजॉयिंग देयर, एक क्लॉज तो है, तो सब्जेक्ट क्या है, वी, लेकिन एग्जामिनर क्या करेगा, कोमा, बाइंग थिंग्स एंड एजुकेटिंग अदर्स। अब इन दो सेंटेंसेस के आप अंदर चेक कीजिए कि ऊपर वाली एग्जांपल को और जरा नीचे वाली एग्जांपल को देखिए। यहां पर हमने वी को इंक्लूड किया हुआ था, यहां पर भी किया हुआ है, लेकिन निचली एग्जांपल्स के अंदर वी नहीं है लेकिन अंडरस्टूड है। अगर आप कह रहे हैं वी वर एंजॉयिंग देयर, तो यहां पर वी है तो सही, आपने लिखा नहीं, आपने क्या इंप्रेशन डाला कि इन सब के साथ वी जो सब्जेक्ट है वो कांस्टेंट है, वो सेम है, लिहाजा आपने एक बार लिखा और अगले दो सेंटेंसेस क्लॉजेस के अंदर नहीं लिखा, तो कंफ्यूज हो सकता है स्टूडेंट ये अटेम्प्ट करते हुए कि सर ने तो कहा था कि सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट होना चाहिए। माना इस वक्त प्रेडिकेट तो नजर आ रहा है, सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट सबके साथ वी मौजूद है, अंडरस्टूड है, हम उसे एक बार लिख रहे हैं, बार बार नहीं। हाँ, अगर सब्जेक्ट मुख्तलिफ होते फिर कुछ और बात थी, लेकिन यहां पर इन सारे इंडिपेंडेंट क्लॉजेस का जो सब्जेक्ट है वो एक ही है। क्लियर हो गई बात बेटा? अगर मैं कहूं आई टॉट देम, कॉमा, आई गाइडेड देम, कॉमा, आई हेल्प देम, और आई सपोर्टेड देम। अगर मैं कहूं आई हेल्प देम, सपोर्टेड देम, गाइडेड देम एंड प्रिपेयर्ड देम, तो अब आई एक दफा लिखा और बाकियों में नहीं लिखा। आप मेरी पहली एग्जांपल और सेकंड एग्जांपल को अगर मैच करें तो सबके अंदर जो आई कांस्टेंट था उसको एक बार लिखा, बाकी सेंटेंसेस के साथ नहीं लिखा, इवन देन दैट इज अ कंपाउंड सेंटेंस। बात में भी कहते हैं ही वाज नॉट प्रेजेंट फॉर ही वाज आउटसाइड। अब फॉर जो है ना, फॉर क्योंकि का सेंस भी देता है, इसलिए भी कहते हैं क्योंकि का सेंस भी देता है, ठीक है, लेकिन का सेंस भी दे रहा होता है, वो भी फैन वॉइस के अंदर आता है, ये याद रखिएगा, ठीक है बेटे। ये था आपका कंपाउंड सेंटेंस। फिर से दोहरा देता हूं, वो सेंटेंस जिसमें दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हों और कनेक्ट हों, किसकी मदद से, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस या आपके फैन वॉइस की मदद से। आगे चलिएगा, आगे बढ़ते बेटे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जितने भी क्लॉज आप पढ़ रहे होते हैं, बेसिकली एडजेक्टिव क्लॉज हो, एडवर्ब क्लॉज हो, नाउन क्लॉज हो, उन सारों की अगर आप शेप चेक करेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की सूरत में होते हैं। क्यों? अगर आप कंडीशनल की बात करें तो वो भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की सूरत में होते हैं। क्यों? देख लीजिएगा, एग्जांपल से इसको बयान करके आपको बताता हूं।
What is the definition of a complex sentence? It is a sentence which has got one dependent clause and one independent clause connected by subordinating conjunctions. देखिए बेटे, ये वो सेंटेंस होगा जिसमें आपके पास एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा और एक आपके पास इंडिपेंडेंट होगा। आप इस बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है किसी कंजंक्शन का मोहताज नहीं होता, लेकिन जब आप किसी क्लास को डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं तो बेटे डिपेंडेंट क्लॉज की डेफिनेशन अगर मैं आसान करके कहूं तो मैं ये कहूंगा, a dependent clause is a combination of subordinating conjunction plus a clause. जब तक इसके साथ कंजंक्शन को प्लस ना किया जाए आप इसको डिपेंडेंट क्लॉज कह ही नहीं सकते। वजह क्या है? All the types of dependent clauses are introduced by their own subordinating conjunctions. अगर आपके पास subordinating conjunctions नहीं होंगे तो आप मुख्तलिफ टाइप्स को डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। एक बात, subordinating conjunctions है क्या बेटे? Subordinating conjunctions are those conjunctions which become the part of one of the clauses. ये करते क्या है? आसान लफ्जों में, they connect the two clauses of unequal ranks. आप कोऑर्डिनेटिंग में कह रहे थे कि कोऑर्डिनेटिंग क्या करते हैं कि दोनों क्लासेस हम पल्ला होते हैं, इधर भी इंडिपेंडेंट इधर भी इंडिपेंडेंट। लेकिन जब आप कोऑर्डिनेटिंग सबऑर्डिनेटिंग की बात करते हैं तो बेटे इनके कनेक्ट करने का अंदाज जरा मुख्तलिफ है। ये दो क्लासेस को कुछ इस तरह से कनेक्ट करते हैं दैट दे बिकम द पार्ट ऑफ वन ऑफ द क्लॉजेस। ये किसी एक क्लास का हिस्सा बनते हैं। जैसे आप व्हेन को देख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन आप जब इस क्लास को मूव करेंगे ना तो व्हेन इसके साथ मूव करेगा। क्यों? बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ दिस क्लास। बच्चे कहते हैं सर ये भी इंडिपेंडेंट है, लेकिन वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को छोड़ देते हैं। अगर आप सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को इसमें प्लस किए बगैर चलेंगे तो आप क्लासेस की स्टडी के अंदर आ ही नहीं सकते। आप किसी क्लास को उस वक्त तक डिपेंडेंट क्लास नहीं कह सकते जब तक कि उसके अंदर एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन उसकी आइडेंटिफिकेशन न बन जाए। अभी समझ आ रही है? और कीजिएगा, when she cooks food, ये पूरा क्लास कौन सा है? डिपेंडेंट। कैसे पता चला? इट हैज गॉट द कनेक्टर ऑफ टाइम, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ टाइम। अगर आप इसको व्हेन को छुपा देंगे तो ये क्लास इंडिपेंडेंट है, और इंडिपेंडेंट प्लस इंडिपेंडेंट ये तो फिर वही बात आ गई जो हम पुरानी कर रहे थे। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो ही नहीं सकता। तो एक डिपेंडेंट कौन सा है? ये। और अगला दे विल ईट। दे विल ईट के साथ कोई कंजंक्शन नहीं है, इट कैन स्टैंड बाय इटसेल्फ। तो एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट, जब आप इनको डेलिनेट करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो क्या चीज आपके पास आती है? We get complex sentence। क्या मतलब? एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लास। डिपेंडेंट क्लास की आइडेंटिफिकेशन क्या है? उसके अंदर हमेशा एक कंजंक्शन मौजूद होगा। आगे बढ़ता हूं बेटे। I can get first position, I can get the first position। दा लगाना जरूरी था। कौन सा क्लास है? डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है? इसको मैंने डिपेंडेंट लिखा हुआ, दैट इज इंडिपेंडेंट, मिस्टेक हो गई। इसको आपके सामने रख देता हूं। दिस इज बेसिकली दीज आर, ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है। क्यों? क्योंकि बेटे यहां पर आपका कोई कंजंक्शन नहीं है। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज योर डिपेंडेंट क्लॉज। कैसे पता चला? इंडिपेंडेंट लिखा है मिस्टेकनली, लेकिन ये आपका कौन सा क्लॉज है? डिपेंडेंट। कैसे पता चला? इट हैज गॉट द कंजंक्शन ऑफ कंडीशन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मौजूद है। तो जिस क्लास के अंदर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मौजूद हो वो कौन सी टाइप होती है? वो डेफिनेटली डिपेंडेंट क्लॉज होता है, और डिपेंडेंट क्लॉज की पहली आइडेंटिटी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अब अगर आप इसको चेंज भी करोगे ना जगह को, यहां पे मैंने कॉमा नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि इफ दोनों क्लासेस के दरमियान आ चुका है। अगर मैं इसको चेंज करूं, इफ आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ फॉर एग्जाम्स आई कैन गेट द फर्स्ट पोजीशन, तो देखिए जगह चेंज करने से क्या हुआ? इफ यहां पर इसके साथ ही मूव करके गया है। क्यों? दिस इफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इज द आइडेंटिटी ऑफ दिस क्लॉज। एक और एग्जांपल देख लीजिए, वही मिस्टेक, ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है, मिस्टेकली डिपेंडेंट लिखा हुआ है। वो क्यों? क्योंकि यहां पे कोई कंजंक्शन नहीं है। मैं इसको छुपा लेता हूं। शी हैड प्रिपेयर्ड द थिंग्स, इंडिपेंडेंट क्लॉज, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। और ये कौन सा क्लॉज है? बिफोर द गेस्ट केम। डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है? डिपेंडेंट है। कैसे पता चला? इट हैज गॉट द कनेक्टर ऑफ रीजन, सॉरी टाइम। बिफोर जो टाइम को डिनोट करता है, और यहां पर ये इसके साथ प्लस हुआ है। अगर आप इसकी जगह चेंज करते बिफोर द गेस्ट केम, कॉमा लगेगा, she had prepared the things। तो बेटे वो क्लॉज जिसके अंदर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ जाए वो क्या कहलाता है? दैट कॉल्स डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है बेटे, आगे बढ़िएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। मैं कहता हूं as I am teaching them you should teach them। अब as ये है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ मैनर, ये एडवर्ब ऑफ क्लास ऑफ मैन, एडवर्ब क्लास ऑफ मैनर की एग्जांपल है। कनेक्टर ऑफ मैनर कहते हैं इसको। यहां पर ये इसके साथ प्लस हुआ तो इसने इस क्लास को क्या बना दिया? डिपेंडेंट। और इसके साथ वाला क्लास कौन सा है? इंडिपेंडेंट। तो जब आपके पास एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट आ जाए तो ये कॉम्बिनेशन क्या कहलाती है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और एक एग्जांपल ऑफ देख लें, दो दे आर इंटेलिजेंट, उर्दू में बनता है अगरचे वो ज़हीन है। दिस इज द कनेक्टर ऑफ सपोजिशन, कंट्रास्ट,
एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट है, इसको कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंट्रास्ट। दो ऑपोजिट आइडियाज को सामने रखता है, ये अपोजिंग आइडियाज को। दे कांट पास द टेस्ट, आपने कहा अगरचे वो बहुत सही है लेकिन टेस्ट पास नहीं कर सकते। ये वाला क्लास कौन सा है? दे कांट पास द टेस्ट, इंडिपेंडेंट। क्यों? कोई कंजंक्शन नहीं है इसके साथ। ये वाला क्लास कौन सा है? दो, दिस इज द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो जिस क्लॉज के अंदर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इंक्लूड हो जाए वो उस क्लॉज को क्या कर देता है? डिपेंडेंट बना देता है। और जब एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आपस में कनेक्ट होते हैं वी कॉल इट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यहां तक क्लियर है? लास्ट अगली जो एग्जांपल है, अगर आपको पिछली स्लाइड समझ आई तो ये तो बड़ा आसानी से आपको समझ आ जाएगी। वो इसलिए कि ये सिर्फ उसमें एक इंक्लूजन से ये कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अब इसकी डेफिनेशन क्या कहती है बेटे? कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स, it is a sentence which has got one dependent and two or more than two independent clauses। आसान सी बात है, पिछले में आप ये कह रहे थे कि एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। अब आप क्या कह रहे हैं कि डिपेंडेंट तो एक ही होगा लेकिन इंडिपेंडेंट दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं। जैसे कि मैं कहता हूं व्हेन शी कुक्स फ्रूट, कौन सा क्लॉज है? डिपेंडेंट। कैसे पता चला? व्हेन आ रहा है, कनेक्टर ऑफ टाइम। दे विल ईट एंड दे विल अप्रिशिएट हर। अब देखिए दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, इंडिपेंडेंट क्लॉज हमेशा किससे कनेक्ट होते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, क्योंकि ये दो है, इनको अलग तो नहीं लिख सकते थे। लेकिन जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो किससे डिनोट होता है? किससे रिप्रेजेंट होता है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ टाइम। एक और एग्जांपल देखिए, आई कैन गेट फर्स्ट पोजीशन, इंडिपेंडेंट क्लॉज, एंड आई विल गेट अ गुड जॉब, इंडिपेंडेंट क्लॉज, इफ आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ फॉर एग्जाम, डिपेंडेंट क्लॉज। कैसे पता चला? क्योंकि बेटा यहां पर जो इफ है ना ये आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और आपका डिपेंडेंट क्लॉज हमेशा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से रिप्रेजेंट होता है। और आपके जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है बेटे, अगर आप इसकी जगह चेंज करेंगे, अगर आप उसको उठा के शुरू में लाते हैं तो इफ भी इसके साथ आएगा। क्यों? बिकॉज इफ इज द पार्ट ऑफ ए डिपेंडेंट क्लॉज। लेकिन बेटे अगर आप इन दो क्लॉजेस की जगह चेंज करेंगे आपके एंड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कभी भी किसी क्लॉज का हिस्सा नहीं बनते। और ये तो बेसिकली इसकी आइडेंटिटी है, इसका मूव करना लाजमी है। तो ये क्या? एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन भी आपका कंडीशनल सेंटेंस है बेसिकली। एक और एग्जांपल देखिएगा, शी हैड प्रिपेयर्ड द थिंग्स एंड मेड एन असाइनमेंट। कितने क्लॉजेस हैं? शी हैड प्रिपेयर्ड द थिंग्स, ये क्या है? डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट। कैसे पता लगा? कोई कंजंक्शन नहीं। यहां पर इसको कनेक्ट कौन कर रहा है? एंड। एंड कौन सा कंजंक्शन है? सबऑर्डिनेटिंग या कोऑर्डिनेटिंग? कोऑर्डिनेटिंग। फैन वॉइस का एलिमेंट है। एंड मेड एन असाइनमेंट, देखिए इसमें मैंने सब्जेक्ट कांस्टेंट रखा है इसलिए यहां पर शी नहीं लगा है क्योंकि दोनों के साथ शी है। यहां पर नहीं लगा हुआ लेकिन अंडरस्टूड है। इसी को कहते हैं वन सब्जेक्ट कंपाउंड प्रेडिकेट, दो काम एक बंदा कर रहा है। अगला क्लॉज बताइए, बिफोर द गेस्ट केम, ये कौन सा क्लॉज है? डिपेंडेंट। कैसे पता चला? इसमें कनेक्टर ऑफ टाइम लगा हुआ है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अगर आप जगह चेंज करेंगे तो ये बिफोर पूरे क्लास के साथ मूव करके शुरू में आएगा। लेकिन अगर आप इन दोनों की जगह चेंज करेंगे एंड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किसी क्लास का हिस्सा नहीं होते। और लास्ट एग्जांपल देख लीजिएगा, एज आई एम टीचिंग देम, कौन सा क्लास है बेटा? डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है? डिपेंडेंट, क्योंकि एज आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ मैनर है। क्या है? मैनर। और इसको इक्वल कंपैरिजन के लिए भी यूज करते हैं, वो बात की बात है। यू शुड टीच देम और यू शुड लीव द जॉब। अब देखिए बेटे ये तो दो आपके इंडिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की मदद से कनेक्ट हुए, लेकिन ये वाला क्लास रिप्रेजेंट हो रहा है किसकी मदद से? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की मदद से। एक डिपेंडेंट और दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लासेस मिलकर क्या बनाते हैं? कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सो आई होप द लेक्चर इज कन्वेड टू यू पीपल। इंशाल्लाह in the next class we will be including something else, and in your coming test these examples and these classification of sentences will also be mentioned. Thank you very much. It's all.